Hi guys, welcome to another Per Annum Money podcast. Welcome to our newest series, Paisa Profit Portfolio. And today we have Anurag Lamba with us. So Anurag's story is quite unique. Generally, when we see financial freedom stories on YouTube, they're mostly about working class people who achieved financial freedom through their paychecks and investing those paychecks, and if through their mutual funds and SIPs, they have achieved their financial freedom. But Anurag's story is a bit different. He's someone who has also been in a job, he's someone who has also been in a family business and has navigated a lot of challenges in his journey. Hi, Anurag. Hi, hello. Welcome to the podcast. Glad to have you here today. Thank you. In the Thank you so start, much. if you can, just give us a brief of your overall life journey, just to sum up for our audience. My working career started a bit early when I was only 17 years old, but nothing was planned, just going with the flow. So, what actually happened was I cleared my schooling in 2002 and got admission in one of the South Delhi colleges. And basically, not for that was not particularly about anything, nothing was decided. Okay, so Right. I just got into that college knowing that it was the best party college of that time. Initially, my family background is that we were into business. My father has always been into business, and no one has ever been into service industry. In schooling as well, I was told just to get decent grades, Hmm. not to outperform. Right. That Punjabi style was there. बेटा Right. पास होना है पुत्र पास होना है बस Right. and I was right on it. Started off with door-to-door salesmanship. That was a bit of a strange thing for my family as well, but I took it as a challenge. I took it that it's just for fun. Simultaneously, I was doing my correspondence. 2003 January was my first this offer letter in which they gave me a stipend of 1600, I believe, and that was my very first paycheck. But I used to make incentive from the very first say job. I was very good at sales. Right. Somehow it was natural. So I used to make 5 or 6,000 in incentives and 1,600 I used to get the stipend. 2003 to 2004 I worked with Touchtel, and then at that time there was basically this BPO culture developing at that time Yeah. from 2000 till 2005 6. So I got into a BPO, international BPO. They were doing US credit cards and loans. I got this job and my package got increased from 1,600 per month to I think it was increased to 8,000 per month plus incentives. So 2004 was when someone suggested me. Till that time, in maybe till mid 2004, June and July 2004, I was spending everything. But 2004 July, someone introduced me to a thing called SIP. So I started off with a 500 rupees SIP in 2004. That was same thing, going with the flow. किसी ने suggest किया तो कर Right. लिया. 2006 my package increased from 96 to 1.5. Right. 2007 it was for around 2 lakhs. 2008 I moved to Citibank. I was handling skip tracing team for collections. Right. The people who got absconding without paying their credit cards and loans, I was handling their team for Delhi and North region basically. So somehow I feel I have been at the right places at the right time. So very early in my career path, I got introduced to this mutual fund SIPs. I got introduced to credit cards and loan sector. I got introduced to the thing that power of compounding works in your favor as well as it works against you if you are into your credit card and loan debt, especially credit cards. Because we used to call people and the kind of debts they had, it was not anywhere possible that they can pay off those debts, even at that time, 2007, 2008. 2009 there was some mishappening, some disputes in my father's business and he was not okay with it. He kind of went into depression, so I clearly remember in September 2009 I had to leave my job. Right. All of a sudden, and that 3 lakh package plus incentives of maybe around 30,000 per month, so that's another 3 lakh went down to zero. Right. And my family business, the father's business, even that income stopped. So I had to join my father's business, and then I had to start everything all over again, though from his experience only, his support only, because I think you can lose anything but you cannot lose the knowledge. Right. And the experience you have gained. Right. For last so many years. 2009 when this thing happened, and before that 2008 actually this financial crisis, the Lehman Brother crisis happened. Right. So that time all my investments, say I was doing the SIPs and I must have a corpus because I started with my own investment, then I started my dad's SIP, my mom's SIP. So I was basically doing it for the family कि मैंने शुरू किया, चलो शुरू करते हैं, ये किसी ने बताया अच्छा होगा.
क्योंकि my dad was basically, he never saved, he just made sure we enjoyed all the things that we can. किसी चीज की उन्होंने कमी कभी नहीं छोड़ी, but saving पे कभी उन्होंने maybe फोकस नहीं किया, क्योंकि वो जैसे बोला बेसिक पंजाबी फैमिली, जो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, कल की कल को सोचेंगे. 2008 I got married in December 2008. Starting the market started going down. So पहला thought तो ये था कि चलो by the time the marriage is near, December तक शायद कुछ recover हो जाए, तो I'll be taking some money out and helping my father in my this contribute to my marriage. But जब वो December में देखा portfolio, so it was down from maybe around 9 or 10 lakhs to 4.6 or 5. 50% was wiped off. कुछ नहीं किया, घर पे नहीं बताया, and hats off to my father, my family as well. उन्होंने पूछा भी नहीं, क्योंकि उनके लिए भी मैं कर रहा था, तो somehow he arranged for my marriage as well. तो थोड़ा बहुत जो हमारे सेविंग्स अकाउंट में मेरे पड़ा था, I contributed that only as far as I remember. 2009 this business mishap happened, and 2008 the most fortunate thing happened with me was कि मैंने वो SIP ब्रेक नहीं करी, and वो 4.6 4.8 देख के भी मैं घबराया नहीं, मैंने वो विड्रॉ नहीं करे, SIP भी चलती रही, continued रही. मतलब what I want to ask on that particular thing is because stock market mutual funds 2008-9 के समय भी बहुत नया था, right, especially India जैसी right country के लिए, and I understand कि जब आप young होते हो, so you know more, your risk taking capabilities are much more than a older person, right? But still seeing कि यार 5 साल में मैं consistently invest किए जा रहा हूँ, 50% of my portfolio is down the drain, right? Still did not occur to you कि यार मैं SIP अभी बंद कर देता हूँ या इसमें आगे और नहीं continue करता हूँ. So why did you still have that belief कि मेरे को continue करनी चाहिए? That is the mindset, you know, I want to understand. I won't call it belief. If I say that I believed that this will bounce back, that won't be right. That was just carelessness. कि चल रहा है, चलने दे यार, कोई नहीं, पंजाबी स्टाइल. That time वो बिलीफ नहीं था, वो कन्विक्शन नहीं थी, गोइंग विद द फ्लो. एंड वेरी ट्रू कि उस टाइम उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी सर पे, एंड वॉज वेरी यंग, कुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क. तो दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग कि चलो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं. उस टाइम भी ये था कि थोड़ा बहुत ध्यान देते थे कि चल इतने में लिया था, दिस वाज द NAV, राइट, इट हैज गॉन डाउन, तो ऐड कर लेते हैं, मे बी इट कैन बाउंस बैक. द नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. वो नहीं था कि this will bounce back for sure. So 2009 when this whole thing happened, the business thing happened, 2009 when I got into this business and came to know that mostly everything was gone and there was a debt of around 17 lakhs on us, and that was only from the market. So there was no say higher interest rate going on or anything like that, and something happened that wasn't I would say the fault of my dad, that was out of control for him as well. At that time the only option I had was to stand by my dad. Okay, so I had to leave the job. He asked you to join the family? No, he never asked me. He never asked me. You basically took a call. Yes, that I would kind of because help. उससे पहले कभी उनको ऐसे देखा नहीं था, राइट. एंड दिस इज व्हाट इज फैमिली फॉर. सो यू डोंट हैव टू से एनीथिंग टू योर फैमिली, दे शुड अंडरस्टैंड. तो आया फिर मैं डैड के पास और उनको बोला, I was only 24 at that time, कि पापा करते हैं, चलो let's see how it goes, let me give it a try, कि आप बताओ मुझे. I was sure I'll be able to do sales, but that was a big blow even to me mentally, because shifting from a corporate environment to a business environment, कि proper going to a Sadar Bazaar, proper traveling in a train, going to Agra, going to Gujarat, going to Northeast and trying to convince customers to take our product, जो अपने हिसाब से आपसे बात करेंगे. And that was not a niche product कि हर किसी को चाहिए. It was not a corporate sales pitch जो एक ready होती. तो उनके साथ आप, and that too without any financial backup. तो उस time पे it was not that easy. I must have cried as well alone, not in front of anyone. But I took it as a challenge कि चलो देखते हैं क्या होता है. कुछ नहीं हुआ तो at the end
I'll get back to my job maybe in any year or two. I was only 24. But the things went well. God has been very kind always. And I started building a few brands. और थोड़ा पापा की knowledge से, थोड़ा उनके पुराने brand से we tried to recover. So basically in an year or so, we were back on track. 2009 as well, when I saw my investment, that graph from 10, it went down to 4.8. Then again in 2009 December, I believe it was back up there and with some plus in it. Because the SIPs were still going even at the downtime and at the time it was recovering. The SIPs were going on. But dad ने बोला investments अभी रहने दे. उस time dad को बताया क्योंकि वो उस time recover हो चुका. I'll take some time from the market and we'll do something. We'll figure out something. Market से time लिया. Remember selling some gold that time. उस time some gold भी गया. But we were back on track maybe in an year or so. ठीक है, I was back to that 3 lakh, 3.5 lakh. Individually mine. I opened my separate company in 2010. Dad's company was already there. So we were back on track within an year or so to my previous package. 2009 में ही पैसे की importance भी पता चली कि पैसा कितना जरूरी है. तो everything was happening too quickly कि बस ये तो जरूरी है. And somehow अपने आप ही mind से वो चीजें आती गई. I remember I used to use Excel a lot that time as well. तो ऑफिस में तो करते ही थे, तो घर पे भी मैंने करना शुरू किया. I started tracking down the expenses, the household expenses. So at that time our household expenses were around 35 to 40,000. तो मुझे लगा कि किसी तरीके ये कॉर्पस लेके जाना है 50 लाख, कैसे भी करके लेके जाना है, क्योंकि 50 लाख हो गया एक बार कॉर्पस. 12% रिटर्न में मान के चलता हूँ आ जाएगी. एंड उस टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि इन्फ्लेशन भी कुछ होती है, क्योंकि मेरे साथ जो सीखा है जब हुआ है तब ही सीखा है. तो जिस दिन 50 लाख पे पहुंचे धीरे धीरे, उस दिन रियलाइज हुआ यार अब तो एक्सपेंसेस 80,000 हो गए हैं और अभी तो हम इन्फ्लेशन हैज किक्ड इन ऑलमोस्ट डबल हो गया. आपको बोला था 35-40 हजार का एक्सपेंस रहता है, दैट इज कितने 5 साल में डबल हो गया. हाँ, 5-7 years में दैट वाज डबल. बट यू आल्सो ग्रू फ्रॉम, तो जैसे 2011 में लेट्स से यू स्टार्टेड रीइन्वेस्टिंग, तो तब आपका कॉर्पस कितना था? आई स्टार्टेड ऑफ विद 500, इमीडिएटली इंक्रीज्ड इट टू 2500 2004 में ही. एंड उसके बाद मैं स्टेप अप करता गया था. 2005 में इट वाज अराउंड 5000 और 7,500. 2006 10,000. उस टाइम मॉम डैड का भी पोर्टफोलियो खोल लिया, उसमें 5,000 चिप इन होने लग गए. फिर उसके बाद 2008-9 में डैड का भी था, HUF का भी, तो वो भी थोड़ा चिप इन होने लग गया. सो राउंड अबाउट फैमिली पोर्टफोलियो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 25-30,000 जाना शुरू हो गया था. मतलब आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नंबर बट समवेयर अराउंड 20 to 30,000. 2011 में आपने लगभग 25-30,000. 2009 में आई क्लियरली रिमेम्बर जब मैंने सारी SIPs आई हैड टू स्टॉप. दैट टाइम ओनली वन SIP वाज गोइंग फॉर 5,500. HDFC टॉप 100 फंड उस टाइम बहुत चलता था, तो उसमें एक SIP जा रही थी. वो 5,500 वाली मैंने नहीं रोकी थी, वो स्टिल जा रही थी. और 2009-10 में फिर भी 2011 भी अगेन स्टार्टेड डूइंग SIP ऑफ अराउंड 15-20,000. 2011 माय वाइफ आल्सो स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर. तो उनकी जितनी भी सैलरी आई 35-40 जो भी उस टाइम आया वो दैट वाज कंप्लीटली गोइंग इनटू SIP. 2012-13 और बड़ी, बीच में कुछ अगर बोनस वगैरह भी आया, किसी का कुछ भी अमाउंट आया वो भी बीच में डाला. ग्रेजुअली द SIPs at one time went up to 1.25 lakh. This is the entire family. 2015 और के बाद हुआ 1.25? नहीं, 2015 तक हो गया था मेरे ख्याल से. So that means your business also started. हाँ जी. We were back on track in 2011. So 2010 your portfolio is 10 lakhs. 2015 your portfolio is now reached 50 lakhs. Around about more than it was more than that. Yeah, more than that. So you have obviously had very good compounding returns in these 5 years. Yes. But now you have realized that the problem is that my expenses are not the same. That your expenses has gone from 40,000 to maybe 70-80,000. Yes. Which means now your ask of the corpus is also down. ये तो जैसे प्लान किया था, इन्फ्लेशन ने सब बिगाड़ दिया. अब क्या फिर किया? उस टाइम ये था कि 0 से 50 तक पहुंच गए हैं, तो आगे भी चलेंगे. गोल पोस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, नो, दैट कीप्स ऑन मूविंग व्हेन यू आर वेरी यंग. सो फिर नेक्स्ट टारगेट वाज 1 CR. यार अकाउंट में तो 1 करोड़ होना चाहिए. उस टाइम 1 करोड़ बोलते हुए भी अच्छा लगता था. दैट टू वंस यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड. तो नेक्स्ट टारगेट वाज 1 CR कि यार 1 करोड़ तो करना है कैसे भी करके. एंड कुछ बीच में अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिली, कुछ टाई अप्स हुए MNCs से, उनके लिए प्रोडक्ट बना के दिए,
तो बहुत अच्छा उसमें मार्जिन मिला. लाइक वी वर इवन डूइंग इट फॉर मोदी ग्रुप 24/7 स्टोर्स, उनके लिए भी किया. मतलब दैट वाज अलोंग द जर्नी. आई एम नॉट श्योर दैट हैपेंड इन 2016 और 17, वो शायद बाद में हुआ था. एनीवेज मतलब कुछ ऑर्डर्स क्लिक्ड इन, आवर ब्रांड ग्रू लाइक एनीथिंग in some particular area. In some part of UP, only our brand was there and we used to get a good margin out of it at that time. वो कहते हैं ना कि भगवान उनका साथ जरूर देता है जो पीछे नहीं हटते अपने काम से. I think we reached 50 lakhs in 2014 only. कुछ aggressive bets हुए थे कि हम 2014 में we were around 50 lakhs. कुछ roundabout हुआ था, वो 50 lakhs का पोर्टफोलियो हो गया था, या 2015 में, मे बी इन द अर्ली 2015. बट आई वाज एबल टू अचीव दिस 1 CR नंबर बाय 2017. वो 2 साल में कैसे हुआ कि डैड का कुछ एक स्मॉल प्रॉपर्टी भी था जो हमने निकाला, उसका जो अमाउंट आया वो हमने सीधा, डैड और मॉम ने हमेशा हैव ट्रस्टेड मी विद दिस थिंग कि तू कर रहा है ना, तू देख, कोई बात नहीं, हमें पता है तू नुकसान नहीं करेगा. I think वो confidence भी आ गया होगा because you have done two things. You have rebuilt the business also from scratch, and you have taken, like you said, 48 employees, 50 employees, and दूसरा your family corpus has gone from 10 lakhs to 50. Right. So I think it makes complete sense for your parents and your other family members to give you the command. Right. So उनको वो कॉन्फिडेंस था और वो देख रहे थे, इज वर्किंग टू हार्ड. सी ईदर यू हैव टू बी राइट अप देयर विद योर क्वालिफिकेशंस और यू हैव टू वर्क हार्ड. कोई ना कोई आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी. माय वेरी फर्स्ट बॉस मिस्टर सुधीर दयाल, ही यूज्ड टू से कि एवरी person is earning bread and butter for himself and every person has a USP. आप अगर 10 बंदों से भी एक एक पॉइंट उठा लोगे ना, you can become very good at sales. तो ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करी कि ये करना है और I have to achieve that number. तो जब वो 1 CR पे पहुंचे, तब सोचा यार कि 1 CR का 12%, उस टाइम these things were not popular. Fire, SWP, nothing was popular. But वो अपने आप, when you're into that thing, and simultaneously I was suggesting my friends as well. उनको भी गाइड करता था, उनको भी इन्वेस्टमेंट के लिए बताता था. तो people used to call me पूछने के लिए कि पता है, दिख रहा है कि ये कर रहा है, he's doing well. I was trying stocks as well, but वहाँ पे I wasn't a success, क्योंकि वहाँ पे you want regular monitoring and a proper mindset. It's a very different than a mutual fund. Right. So 2017, where was I? I'm sorry. Yeah, so 2017 you've reached the first year. Yeah. So फिर सोचा यार, अच्छा, I had always got around 15, 16, 17, more than that return, the average returns, on my portfolio. Basically towards 18, 19%. Even right now my portfolio is around 23%. My mutual fund portfolio. तो 2017 अपने आप ही एक कॉन्सेप्ट बनाया कि यार 80-90,000 इज माई फैमिली एक्सपेंस. 12% भी आया तो 1 लाख रुपए महीना तो आ रहा है, तो दैट मीन्स सब ठीक है, बल्ले बल्ले, पंजाबी स्टाइल. तो डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. बट 2016 आई वाज ब्लेस्ड विद द किड. तो अब ठीक है, अपने लिए तो हो गया, फैमिली एक्सपेंसेस के बारे में नहीं सोचना, ये हो जाएगा. बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, आई एम वर्किंग, डैड इज वर्किंग, वाइफ इज वर्किंग, HUF से भी आ रहा है, mom is also contributing something. It was not my effort. My part was only to make manage sure the money. manage the. I was only managing the money. ये देखा कि यार ये तो सही चीज है, ये तो बढ़िया है, मजा आया कि I've reached that spot. But still अभी थोड़ा सा कॉर्पस और चाहिए, human nature. यार इससे नहीं होगा, ज्यादा चाहिए. 2019 के अराउंड, एट दैट टाइम 2017-18 SIP जा रहा था अच्छा खासा, 1.5 लाख के करीब. एंड 2018 and 19 I also realized that the kind of business we are going in, it's in downtrend. वो थोड़ा सा पहले समझ में आने लग गया था कि ठीक है, ब्रांड बन गए हैं, जो सेट है वो सेट है, नई चीज कोई चीज नहीं डेवलप हो रही इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में. सो वी आर बेसिकली इनटू प्लेइंग कार्ड्स, इंडोर गेम्स. तो बाय द टाइम, say like electricity is now reaching everywhere in every part of India, right? Every corner of India. And with the mobile phones, smartphones, people are shifting their focus from the indoor games to this mobile or हो ही रहा है. जैसे हम playing cards बोला, लोग रमी खेल रहे हैं आजकल फोन पे. So obviously digital expansion will lead to obsoleteness of such physical goods. Right. So the industry was going downside. 2019 मुझे लगा कि वी हैड आवर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन रेंट. तो एक रेंट पार्ट सोचा कि यार ये कट आउट करते हैं. 2019 तक द कॉर्पस वाज अराउंड 2.5. अच्छा, मेरी एक आदत ये जरूर रही है कि व्हेनेवर आई ट्राई टू डू समथिंग न्यू, नो,
मैं थोड़ा बहुत तो पढ़ता हूँ उसके बारे में Right. कि क्या है क्या नहीं है, करना है चलो कर लेते हैं, लेकिन यू नीड टू हैव सम नॉलेज, और देयर हैज ऑलवेज बीन सम गाइडिंग लाइट फॉर मी इन विच एवर वे आई लुक, कोई ना कोई जरूर मिल जाता है, Right. भगवान भेजते हैं जो भी, तो Right. आई जस्ट हैव टू मैनिफेस्ट दैट थिंग, रजिस्टर माय रिक्वेस्ट टू गॉड, एंड कोई ना कोई आ जाता है. दैट टाइम अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माय फादर मिस्टर अनुज जैन, ही गाइडेड मी कि तू यहाँ पे there is a place nearby Delhi which is basically a CLU zone, change of land use zone, in which you can take a agriculture land, get that changed into industrial land, and then you can build your own unit. Right. Construct your own unit on that. So 2019 was the very first time I withdraw from my mutual fund. That started in 2004. Right. So after 15 years was the very first time मैंने कुछ विड्रॉ किए थे उसमें. तो आई विड्रॉ अराउंड 67 lakhs टू बी प्रिसाइज, कि वो लैंड 67 lakhs का आया. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट आई वाज ऑलवेज अगेंस्ट रियल एस्टेट. रीजन बीइंग वही कैलकुलेशन दिमाग में चलती थी, 1 करोड़ का अगर मैं अपना कॉर्पस हटा के इफ आई बाय समथिंग तो उसका रिटर्न उतना नहीं आएगा, रेंटल यील्ड उतनी नहीं आएगी, आई विल सेव वेरी मतलब फ्यू ऑन रेंट. पहले तो इंडस्ट्रियल यूनिट 1 CR में कोई दिल्ली में आती नहीं, एंड इफ आई एम गेटिंग द सेम थिंग से अराउंड 40-50,000 पर मंथ, तो मैं उतना पैसा ब्लॉक क्यों करूंगा. एंड व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ कॉर्पस, नो, व्हेन यू हैव अ कॉर्पस, आपका काम करने का तरीका बदल जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बदल जाती है, आपकी क्रिएटिविटी बदल जाती है, योर आउटपुट इंक्रीजेस. दैट इज व्हाट आई फील, बिकॉज आपको परफॉर्म करने का वो प्रेशर नहीं होता अपने आप, इट कम्स बाय नेचुरली, यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड. तो 2019 ये CLU लैंड मैंने लिया इन जून और जुलाई. नवंबर ऑल द पेमेंट्स वर मेड एंड वी अप्लाइड फॉर द CLU थिंग. 2020 आई वाज सपोज्ड टू गेट दिस कंफर्मेशन लेटर. तो द गाय हु वाज हेल्पिंग मी आउट विद द CLU थिंग, उसने बोला कि CLU हो गया आपका, आप कंस्ट्रक्शन की तैयारी करो. दैट वाज व्हेन आई विड्रॉ अनदर 30 lakhs out of my mutual fund portfolio. By March 2020 the COVID hit. I never knew कि ये होने वाला है. By God grace बचे. थोड़ा बहुत हिंट था कि ये हो सकता है, क्योंकि I think जनवरी में थोड़ा बहुत नॉइज आना शुरू हो गया था. From China के केसेस जो आए थे, तो वो थोड़ा बहुत हिंट था. तो मैंने अपने CLU के कंफर्मेशन आने के लिए वेट मेरे ख्याल से तभी नहीं करी थी कि मैंने कहा आप कॉर्पस हाथ में होना चाहिए, क्योंकि इतना समझ में आ गया था कि अपने हाथ में पैसा रखो इफ यू हैव एनी नियर टर्म टारगेट. तो बाय मार्च 2020 कोविड हिट, और वहां से मेरे को एक मेल आता है कि योर CLU हैज बीन रिजेक्टेड. गवर्नमेंट चेंज सम नॉर्म्स एज पर द गाय हु वाज हेल्पिंग मी आउट. देयर वाज सम clerical error somewhere which was misinterpreted and this got rejected. उनको गिफ्ट्स भी जा चुके थे, क्योंकि गवर्नमेंट काम है तो गिफ्ट्स तो जाने ही होते हैं. The value of that land went from 67 or 70 lakhs to 20 लाख, कि वो इंडस्ट्रियल लैंड हो ही नहीं सकता, इट विल ऑलवेज बी एन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि वो नॉर्म्स चेंज हो गए. अब सोचा ये क्या करें, ये क्या हो गया. अच्छा खासा म्यूचुअल फंड वहां बैठा था, बट म्यूचुअल फंड भी नीचे आना शुरू हो गया था, कोविड की फॉल थी. बट म्यूचुअल फंड आई हैड एन एक्सपीरियंस 2008 में, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन 2014-16 में भी हुआ था. तो जब भी होता था आई यूज्ड टू मेक लमसम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 2008 वाला मैंने देख लिया था. 2022 में I had that 30 lakhs in my hand, and I still remember I was very bullish on small cap and mid cap somehow. 2008 में small cap was around 13,000 index and it went down to 3,000. And till 2016, maybe 7 or 8 years, it took to reach that position again, 13,000. 13,000 से वो फिर गया 2018 में, 2013 से वो फिर गया 18,000 in 2020. From that it went down to 8,000. So वो 30 lakhs मैंने मोस्टली उसमें डाले. सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं, एंड एज आई टोल्ड यू कि वो बिजनेस भी नीचे की तरफ जा रहा था, उसमें डाउन ट्रेंड आ रहा था. तो व्हेन यू आर इनटू बिजनेस बहुत सारी चीजें होती हैं. इट्स नॉट, आई वोंट से जॉब इज ईजी और बिजनेस इज ईजी. दोनों में अपनी डिफिकल्टीज हैं, दोनों टेक अ टोल ऑन यू किसी ना किसी तरीके, मेंटली, फिजिकली. तो उस टाइम क्या हुआ, जैसे ही कोविड लगा, शटडाउन हुआ, वो बिजनेस है ना एकदम से उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई लॉकडाउन में. इफ यू सी प्लेइंग कार्ड्स और लूडो, वी वर नॉट इनटू लूडो, लेकिन लूडो कोई पूछता नहीं है. लेकिन इतनी डिमांड बढ़ गई कि इट वेंट मे बी अराउंड 10 और 15x. Obviously, I तो जो still remember कि कुछ था नहीं करने को, लोगों को घर पे कुछ चाहिए, सो डैड वुड से और लेट्स से अ ब्रदर वुड से कि भाई कुछ खेल ही लेते हैं. I found that as an opportunity
कि जितनी भी मार्केट में पेमेंट स्टक हैं वो निकले, और उस टाइम पे एक पोजीशन पे पहुंच गए थे, फिर भी फाइनेंशियली इतना सिक्योर हो गए थे कि पता था हो जाएगा। एक तो कॉर्पस था थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर मैं 50% का भी SWP कर लूँ तो 50% कहीं से भी अरेंज हो जाएगा। आई एम वर्किंग, डैड इज वर्किंग, वाइफ इज वर्किंग, HUF से आ रहा है, अलग अलग चीजों से आ रहा है। तो उस टाइम आई टुक अ डिसीजन कि इस काम से थोड़ा सा पीछे हटना है, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू मैनेज 50 पीपल। जो लोग करते हैं 100 500 वो उनका स्किल सेट अलग लेवल का है, राइट। फॉर मी इंडिविजुअली आई वाज लाइक कि बहुत ले लिया पेन, अब थोड़ा सा मैं ईज डाउन करूंगा, माइंड की गेम ज्यादा खेलेंगे, माइंड से पैसा ज्यादा कमाएंगे, फिजिकली थोड़ा कम कमाएंगे। दैट वाज माय थॉट बिहाइंड इट। और जितना भी डम स्टॉक था, जितना भी स्टॉक था दैट वी वर नॉट एबल टू रिलीज, वो सब निकला उस टाइम पे। सब कुछ निकल गया, वो स्टॉक सारा नील हो गया, एंड दैट टू विद एडवांस पेमेंट्स, एवरीथिंग। तो उस टाइम पे वो पैसा हाथ में आया तो आई हैड 2 ऑप्शंस। एक तो ये 30 लाख पड़ा था, इतना ही अमाउंट समझ लो वहां से भी निकला सारी जो पेमेंट्स, क्योंकि जिसने पेमेंट नहीं दे रहा था उसको बोला पहले तो आप पिछला क्लियर। अब उस टाइम पे आई हैड एन ऑप्शन कि या तो मैं बिजनेस में नई मशीनरी डालूं और थोड़े नेक्स्ट लेवल प्लेयर्स के साथ compete करने की कोशिश करूं। फॉर दैट मनी वाज नॉट इनफ एंड आई वुड हैव टू टेक लोन्स एज वेल। और उसके बाद जैसे ही आपके यहाँ मशीनरी आई, डेप्रिसिएशन, everything kicks in. You have to compete with the players who have such a big background. They are so financially stable that they can run without revenues for next 5-10 years. Right. तो आप उनको कहाँ compete कर लोगे? उस टाइम तक म्यूचुअल फंड वाला भी समझ में आ गया था कि ये I won't say easy money but this works for me. तो इसी में डालो ना, सारे बंद हैं, पैसे यूज नहीं कर पा रहा कोई, बाहर निकल नहीं पा रहा कोई, तो पैसे तो एनीवेज भी नहीं चाहिए किसी को, और ये खुलेगा, ठीक है। और इन्वेस्ट नहीं करते, म्यूचुअल फंड में बड़ी बेट्स लेता हूँ। उस टाइम मैंने म्यूचुअल फंड में काफी बड़ी बेट्स ली, लमसम इन्वेस्ट किया, और दैट वाज द टाइम when I believe everyone was waiting for the market to get down to 7500 6000 nifty I'm talking about, but मैंने 9000 के करीब इन्वेस्ट ऑलमोस्ट कर दिया था। I was never with the mindset कि जब तक ये 6000 पे नहीं जाएगी, जब तक ये 7000 पे नहीं जाएगी, I'll keep holding the कैश पड़ा है तो डाल दो। दैट हैज बीन माई जर्नी ऑलवेज। आपके पास कैश है तो यू शुड पुट योर मनी टू वर्क। द हार्डर यू आर वर्किंग, द हार्डर योर मनी शुड ऑल्सो वर्क। तो उस टाइम पे कोई ऑप्शन भी नहीं था। 30 लाख वॉज फॉर कंस्ट्रक्शन, वो हो नहीं सकती थी, वो कैंसिल हो गया, तो सारा उसमें डाल दिया। वो इफ आई चेक नाउ दैट 60-70 लाख या वट एवर मनी दैट आई डिपॉजिटेड दैट टाइम, मैंने उसके बाद विड्रॉ भी किया क्योंकि मैंने उसके बाद रियल एस्टेट के कुछ बेट्स लिए, बट स्टिल उस वाले पर्टिकुलर डेट्स में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इफ आई सी देम even now they are giving me 400% return, 500% returns absolute। कि किसी फंड में अगर वो 1 लाख पड़ा है तो उसकी आज की अमाउंट 4 लाख है अभी भी। 9,000 the market has now went up to 25,000, right, so almost 3x right that way, and your let's say and I was sitting in small cap has went from maybe around 13,000 to 55,000 or maybe even lesser, 18,000 तक गया था। उसके बाद it went back to 8,000 or 9,000, it is up now 56,000। तो उस टाइम वो एक बड़ी बेट ली कि चल बहुत टाइम हो गया, एक बार करते हैं इसको। और मैं 2008 से लेके 2018 तक स्मॉल कैप ने परफॉर्म नहीं किया था, only from 2018। now if you let's say judge this particular scenario where you invested lump sum, आपने लगभग you said you deposit somewhere around 60-70, if this has given you a 4x 5x return, so जितना आपका टोटल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो था इन फर्स्ट प्लेस, यू हैव ऑलमोस्ट मेड दैट मनी इन लास्ट 3-4 exactly years, लिटरली डबल्ड इट। exactly and उसमें भी निकाला तो मतलब ठीक है। इफ यू आर इनटू, आई कंसीडर माई सेल्फ इनटू अ बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग। मैं इसको अपना बिजनेस मानता हूँ कि इसने मेरे को ग्रो करके देना है, राइट। कोई भी हम बिजनेस करते हैं, उसका प्रोडक्ट स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये कितने टाइम में कितना रिटर्न देगा, कितने टाइम में मैं निकाल पाऊंगा इसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट्स, कितना टाइम आई हैव टू गिव, डू आई हैव टू हायर समवन टू टेक केयर ऑफ इट, या क्या करना है। तो म्यूचुअल फंड को भी इनिशियली से ही मेरे ख्याल से मैं अपना बिजनेस मानता था कि ये मैं बिजनेस का एक मशीनरी डेवलप कर रहा हूँ, दिस विल स्टार्ट प्रिंटिंग मनी समवेयर डाउन द लाइन। अभी आई एम जस्ट कंस्ट्रक्टिंग अ मशीनरी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, अलॉन्ग द वे सारी चीजें समझ में आती गई, तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होने लग गई, सारी चीजें हो गई। एंड बाय द टाइम रियल एस्टेट का भी ये जो एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद से that industrial thing, that norm, considering that this guy was saying it was a technical error or something, that's the reason it got rejected, उसको करने में, प्रोसेस करने में इनको 8-9 महीने लगे। तो 9 months after the CLU was opened again, थोड़ा कोविड की वजह से गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे, तो उस टाइम से वो थोड़ा और पेंडेंसी चली गई। तो जैसे मैंने बताया, जिन्होंने मेरे को हेल्प करी थी लैंड लेने में, उन्होंने एक बात बोली
कि बेटा जमीन कभी धोखा नहीं देती, तू ये बात ध्यान रखियो, तू जो भी करता होगा बट जमीन कभी धोखा नहीं देती। ठीक है, मैं कहा चलो कोई नहीं, पड़ी है, देखेंगे क्या Right. होता है क्या नहीं होता। जैसे उन्होंने बोला कि जमीन बेटा कभी धोखा नहीं देगी. हाँ, So your land went from 70 lakhs to 20 lakhs. राइट Then CLU opened again after 9 Right. months. So what changed after सो that? इट वेंट बैक अगेन। वहां पे इन द मीन टाइम दिल्ली के हम्म। पॉल्यूशन की वजह से सीलिंग वगैरह का सारा प्रॉब्लम आ रहा था। हम्म। तो इट वेंट फ्रॉम 20 लाख अगेन बैक टू 80-90 लाख एंड देन अ न्यूज केम इन कि उसके विद इन द विन सिटी पास में ही मारुति आ रहा है, मारुति प्लांट खोल रहा है। तो देन इट वेंट फ्रॉम 60-70, 20 से 60-70 वापस आया, 70 से सीधा हो गया 190। तो वो चीज थी। अच्छा, विद इन दिस पीरियड क्या हुआ कि जो मैंने 60-70 लाख डाले थे, तो 30 लाख दैट वाज मेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। बाय 2021 द मार्केट अगेन रिकवर्ड। राइट, तो 30 lakhs जो आपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में निकाला, जो कि एक्चुअल फ्यूटाइल हो जाता मनी, हाँ, यू पुट इट इनटू म्यूचुअल Mutual फंड्स एंड funds. वो यूटिलाइज वहां पे ठीक हो है, वो गया. वहां यूटिलाइज ऐसे हुआ कि बाय 2021 उसमें अच्छा खासा, मतलब वो कहते हैं ना, असल निकाल दिया। राइट, मतलब आई वो टुक आउट द प्रिंसिपल अमाउंट हाँ, and 30 still- lakhs का जो डेफिसिट पोर्टफोलियो में बनता वो मेंटेन हो गया भाई. Right. वो वही था। Right. एंड इवन दैट टाइम कोविड था। हम्म। ठीक है, अब मेरे को था कि अब मैंने रिस्क तो ले लिया 30 लाख से, कंस्ट्रक्शन वहां करनी है और मैंने रिकवर भी कर लिया, तो वो 30 लाख मैंने वापस निकाल लिया 2021 में। बट द कंस्ट्रक्शन वाज स्टिल नॉट ओपन देयर, CLU प्रोसेस वाज स्टिल गोइंग ऑन। वो लेंदी हो गया था, एक नया चीज उसमें इंट्रोड्यूस हो गई थी। आई बॉट अ स्मॉल लैंड लेस देन 1000 स्क्वायर यार्ड्स। तो लेस देन 1000 स्क्वायर यार्ड में गवर्नमेंट ने उसका CLU रोका हुआ था, बट दे वर सपोज टू स्टार्ट इट एनी टाइम। 1000 गज से नीचे, सॉरी। तो माई लैंड वॉज 628 गज, इट्स 523 स्क्वायर मीटर आई बिलीव। तो उससे नीचे बंद था CLU, बट एनी टाइम इट वॉज सपोज टू ओपन, कि ये ओपन हो जाएगा। तो मुझे था चलो अब वो रिस्क ले लिया, वो 30 लाख निकाल लूं, वरना मेरा सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने सोचा था, द प्लानिंग वुड बिगड़ जाएगी। वो 30 लाख लिया, बट वहां से CLU का आ नहीं रहा था। माय नेचर इज कि पैसा पड़ा है तो उसको काम पे लगाओ। फिर थोड़ी स्टडी शुरू करी, चलो रियल एस्टेट थोड़ा और देखते हैं क्या हो सकता है। दिल्ली NCR देखा तो जेवर भाग चुका था, गुड़गांव भाग चुका था, सारी चीजें भाग चुकी थी। 21 में मेरे ख्याल से किसान आंदोलन शुरू हो चुका था या नहीं, 21 के बाद हुआ था। तो कुंडली में मैंने एक लैंड लिया, कि रेजिडेंशियल प्लॉट लिया for 30 lakh approximately. How far is it from Delhi? From my place it would be around 20 kilometers, 21 kilometers. बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वेस्ट दिल्ली के पास है। वहाँ पे मैंने एक रेजिडेंशियल प्लॉट लिया कि चल यार पैसे पड़े हैं, इसमें डाल दो, क्योंकि बिजनेस में लग जाएंगे। बिजनेसमैन के साथ हमेशा ये खतरा होता है कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, रीइन्वेस्ट होता है। हाँ, वहाँ से आप निकाल नहीं सकते। वो मैंने लैंड लिया 2021 में। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, उसमें फिर वही हुआ, थोड़ा बहुत रेट्स गिरे क्योंकि ब्लॉक हो गया था सारा। वहाँ पे मेरा CLU आ नहीं रहा था, तो आई वाज नॉट वरीड। मेरे को था कि चल, जिसके थ्रू गया था उसने भी बोला कि आप ले लो, 1-2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा ये लाख रुपए या 2 लाख रुपए नीचे आ जाएगा, लेकिन अपसाइड इज अराउंड 10, 12, 15 लाख। फिर वहाँ किसान आंदोलन भी लग गया, उसके भी रेट्स थोड़े बहुत नीचे गिरे, उसके ज़्यादा रेट नीचे नहीं गिरे, और यहाँ पे CLU आ नहीं रहा था। तो आई गॉट द CLU ओनली इन 2023। तो बट दैट टाइम दैट मनी वॉज स्टिल इन यूज, एंड एकदम से कुंडली में भी बूम आ गया, एंड इवन दैट इज 3x। बेसिकली जहाँ पे भी सोच समझ के जब निकाला, वो दैट थिंग वर्कड आउट। Right, and I think this is the fruits of 15 years of rigorous investing. Yes. And it's not just, let's say, about mutual fund investing. Matlab, you have been very precise about the bet that you have taken. Yes. Right, and that is obviously, matlab, if you see your last 3-4 years, I think you have generated almost 100, 200%, 300% kind of returns almost on everything that you did. Right, and maybe this was a time, this post-COVID wave, as we can call it. So, Abhi, can you tell me, like in 2024, we are sitting here, what's the entire corpus, right? The allocation, what is in mutual funds right now, what is in real estate, or also any other asset classes that you invested? म्यूचुअल फंड में अब थोड़ा कम हो गया है। म्यूचुअल फंड में द कॉर्पस वुड बी अराउंड समवेयर अराउंड 2.2। इट इज द सेम एज वाज इन 2019, बट विल कम टू दिस थिंग कि 2 CR में से मैंने 2.5 CR निकाल भी लिया, एंड स्टिल आई एम सिटिंग एट 2.5 CR, 2.25 CR। We'll come to this thing. Mutual fund is 2.25 CR. Real estate 2023 में भी मैंने निकाला around 60-65 म्यूचुअल फंड में से। 22 एंड में भी निकाला, 2023 में भी निकाला अराउंड 75। तो मैंने निकाले हैं, एंड मुझे लगता है कि हर चीज की ना अपनी इम्पोर्टेंस है, हर एसेट क्लास की अपनी इम्पोर्टेंस है। कोविड हुआ, घर बैठ गए, बिजनेस
रुके, हमारा बहुत चला, बट फॉर्चुनेटली हमारा बहुत चला, बट अनफॉर्चुनेटली बहुतों के रुके भी। तो वो रेगुलर इनकम फ्लो नहीं था और बिजनेस डाउन साइड भी जा रहा था। एंड गॉड फॉरबिड्स अगर मुझे कुछ हो जाए, बिजनेस तो सारा मैं ही देख रहा हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई फैमिली to look after my business. My dad unfortunately passed away in 2022. मुझे 2023 में कहीं नीड लगी कि पता नहीं म्यूचुअल फंड कितना समझ में आए फैमिली को, मॉम को, वाइफ को, though I keep telling them each and everything, I keep them updated. Even my 7-year-old knows a bit about Right. stocks and how to be an owner of a product and not the buyer. तो as and when जहाँ देना होता है हम उनको देते रहते हैं। तो 2023 में I realized कि मुझे रेंटल इनकम भी चाहिए। और रेंटल इनकम में सिंपल सा रूल था कि 4% रेंटल यील्ड आना चाहिए। उसमें पहले कुछ गलतियां भी हुई, बट जैसे स्टॉक में करते हैं ना कि स्टॉप लॉस एक होना चाहिए। Right. तो एक छोटी प्रॉपर्टी ली भी, उसमें 1-2 लाख का नुकसान भी हुआ, बट आई नेवर वेटेड कि नहीं जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक इसी में बैठे रहना है। उससे निकले, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो रियल एस्टेट में अब मैंने फिर अराउंड 1 CR आई हैव इन्वेस्टेड अगेन टू क्रिएट सम रेंटल इनकम। उससे रेंटल इनकम आना शुरू हुआ। इन रियल एस्टेट माय कॉर्पस वुड बी फॉर अराउंड 4.8 एक्सक्लूडिंग माय रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आई डोंट इंक्लूड माय रेजिडेंशियल इन्वेस्ट। ठीक है, तो इट वुड बी समवेयर अराउंड 4.8 CR, दैट इज से 2 or 3 lands and a couple of residential and 1 small commercial property. Commercial properties I won't count it in rental because I use it for my own thing. It's a small office. So 4.8 is in real estate. I am into debt majorly 80 or 90% into PPF and EPF. EPF for my wife and PPF I've opened a PPF for me, my wife, mother. तो उसमें it's close to 90 lakh. तो वो debt portion भी है। उसमें भी ये लगता है debt I have keeping it that way because any given day आई शुड गेट द मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज जो हमारी होती हैं, जो चाहिए ही चाहिए 40-50,000। मुझे लगता है सिर्फ उतना हमारे पास डेट का पोर्शन भी होना चाहिए। एनी गिवन डे में आई कैन टेक आउट दैट मच। तो 0.9 इन डेट, मे बी अराउंड 0.25 इन बुलियन गोल्ड। गोल्ड भी जब भी मुझे लगा मैंने एग्रेसिवली बाय किया है। 38,000 पे भी किया, 35,000 पे भी किया, 48,000 पे भी किया, 60,000 पे भी किया। एंड जब जरूरत पड़ी सेल भी किया। जब प्रॉपर्टी लेनी थी सारा म्यूचुअल फंड से नहीं निकाला। जो 35 में लिया हुआ है, 38 में लिया हुआ है, सोल्ड इट ऑन 60-65। उसने अपना काम कर दिया ना। तो you should be very focused on which thing you are utilizing, what asset are you selling off and for what purpose. I have always believed in creating another asset from an asset even if I have to sell it out. Liability में नहीं जाना चाहिए वो। तो that has helped me a lot. And 0.5 I am into equity. Typically 8 to 8.5 CR. तो वो 2 CR के पास जो गोल्ड पोस्ट था, that was a millionaire thing in dollar terms. तो वो भी with God grace I have achieved. If you talk about FIRE जो अभी popular हुआ है recently for quite some time now, I think FIRE is not financial independence, retire early. It means financial independence requires effort, rigorous effort. It's not easy. आप Excel पे करके, हाँ Excel helps. You should have your numbers in front of you. That surely helps. और वो रेगुलर आप कितना कर पाते हो, कितने अप्स एंड डाउन्स आप देख पाते हो, डाउन साइड में आप कितना स्टेबल रह पाते हो, कितना काम रह पाते हो, अप साइड में आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो। क्योंकि वंस यू हैव दैट 1 CR, 2 CR, 3 CR और 4 CR कॉर्पस नो, तो आपका मन करता है चल यार इंटरनेशनल ट्रिप मार के आए, I should have a Mercedes in front of my house, I should have a big bungalow. उसको कैसे आपको कंट्रोल करना है if you want to achieve a bigger number, तो वो सारे ups and downs आपको देखने पड़ेंगे। And once you reach that spot कि ठीक है आप FI आप हो भी गए, financially independent हो भी गए आप, तो I think that financial independence requires effort changes to financial independence. Restructure your effort. You have to reconstruct your way of thinking कि अब ठीक है बहुत भाग लिया यार, let's calm down a bit, but ठीक है within your means, and now I can shift from working for money to for what I love. If you get money out of it, that's a byproduct. ठीक है, वो साथ में आएगा अपने आप, और जब आप कुछ दिल से करते हो तो वो आपको उसका rewards, returns मिलते हैं। So I would also like to draw a parallel in your journey कि like you said 2010 में our family expenses were 35 to 40,000, right? 2015 में you realize that it's 80,000, right? What is that number now in 2024? I think it would be somewhere around 1.25, 1.35, right, minimum. And another parallel that is very good to see here is that
your expenses increased from 50,000 to 80 to 1.25, but your corpus went from 10 Yes. lakhs to 50 lakhs to almost now, I think 7.58 year in total. Because the focus was there. Yeah. The focus was not on the expenditure and luxuries.